Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. I hope you all are having a great day. If you have any queries related to Master Cadre Punjab exam, then you can leave your comment in my comment box. In this limited period, I am trying my best to provide you the useful material that can be beneficial for you in the upcoming exam. So today I am here with another writer, another modern writer of English literature, that is Harold Pinter. So let's get started. Harold Pinter, he was born in 1930 and he died in 2008. Harold Pinter was a playwright, screenwriter, director, actor, and also a poet. Harold Pinter won Nobel Prize in 2005. Very important. You must remember the Nobel Prize winners. Next is Harold Pinter was an atheist. He doesn't believe in any deities कि भगवान नहीं होता उनके अकॉर्डिंग, तो उनका कोई पर्टिकुलर डाइटी में कोई बिलीव नहीं था. नेक्स्ट इज हैकने डाउन स्कूल मैगजीन. ये एक मैगजीन का नाम है. इस मैगजीन में उनकी एक पोएम पब्लिश हुई थी. हु वॉज द मेंटर ऑफ हेरोल्ड पिंटर? दैट इज सैमुअल बेकेट. हैकने डाउन स्कूल से उनकी एजुकेशन हुई है. ही वॉज मैरिड टू विवियन मर्चेंट. शी वॉज एन एक्ट्रेस. Harold Pinter was also called a master of menace. I'll tell you further the meaning of menace. You just remember this thing firstly, that he is the master of menace. He invested his plays with an atmosphere of fear. उनके जो प्लेस थे उनमें उसमें जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था वो एक डर का माहौल होता था, हॉरर का माहौल होता था एंड मिस्ट्री. तो ऐसे उनके प्लेस का एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते थे. नेक्स्ट इज द नेम. First work by him, The Birthday Party. It was published in 1957. The Birthday Party is a play by him. Next is very important, The Homecoming. It was published in 1964. It is a 2-act play. Next is Betrayal. It was published in 1978. So these are the 3 plays which were written by him. Very important. You must remember the publishing dates and the name of the plays. Next is The Room. It was published in 1957. The important thing about this play is it is the first play by him and it is a first 1-act play. ये पहला 1-act play था, ऐसा play जिसमें सिर्फ एक act था. Next is The Caretaker. It is a full length play and very popular. Most popular था in 1960. Old Times. It is a memory play. Next is No Man's Land. Very important. You must remember that No Man's Land is written by Harold Pinter. Next is The Dumb Waiter. It is also a 1-act play. जो द रूम था ये पहला प्ले था उनका, फर्स्ट 1-act play था. And The Dumb Waiter is also a 1-act play. It was published in 1957 and the characters of this works is Ben and Gus. So these are the important characters of The Dumb Waiter. Next is, this is not the work, Pintoresque. Pintoresque में क्या आ जाता है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो उनके रिलेटेड हैं, जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है. Pintoresque. फर्स्ट इज एब्सर्डिटी. एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, इलॉजिकल हो. इलॉजिकल एब्सर्ड प्लेज होते हैं जैसे, जिसमें कोई भी चीज़ लॉजिकल नहीं होती. जैसे सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो है, इट इज़ एन एब्सर्ड प्ले. नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मेनास. कॉमेडी ऑफ मेनास क्या होता है, ये ऐसे प्लेज होते हैं इन विच द लाफ्टर ऑफ द ऑडियंस इन सम और ऑल सिचुएशंस. मतलब ऐसे प्लेज होते हैं जिसमें ऑडियंस का जो लाफ्टर होता है किसी सिचुएशन में या सारी सिचुएशन में
इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ सम इम्पेंडेंट डिजास्टर। मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि कोई लाफ्टर क्रिएट किया जाता है और उसके बाद कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो ऐसा होता है कॉमेडी ऑफ मिनास। ठीक है, कोई मतलब हंसी के बाद का एक डिजास्टर, तो वो हंसी के दौरान ही, लाफ्टर के दौरान ही उस डिजास्टर के आने का आइडिया हो जाता है ऑडियंस को। सो दिस इज द कॉमेडी ऑफ मिनास। नेक्स्ट इज डायलॉग विद मैनी पॉजेज, कि ऐसे डायलॉग्स जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजेज आते थे, तो हेरोल्ड पिंटर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशंस, आयरनी। आयरनी आपको पता है कि जैसे कि कहा कुछ और जाता है बट उसका मीनिंग उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एक किसी पे व्यंग करना किसी पे। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, ऐसी फ्रेज को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब उसके अंदर ही उसके ऑपोजिट मीनिंग निकल रहा हो सेंटेंस में। वो एक जो सेंटेंस होगा वो खुद को ही, अपने मीनिंग को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, अपने मीनिंग को ही अपोज कर रहा होगा। नेक्स्ट इज वेगनेस। वेगनेस मतलब कोई चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, तो ऐसे वर्क, ऐसे प्लेस जिसमें क्लैरिटी ना हो। नेक्स्ट इज रेफरेंस फेलियर। नेक्स्ट इज सिमेंटिक एम्बिगिटी। सिमेंटिक एम्बिगिटी मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हों, मल्टीपल मीनिंग। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग। सिमेंटिक्स मतलब वर्ड से लिया गया, वर्ड्स एंड फ्रेजेस से। नेक्स्ट इज डीकंटेक्चुअलाइजेशन। डीकंटेक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी हमने एक कोई भी डायलॉग है, कोई सेंटेंस कुछ भी दिया हुआ है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, बट उसके अलावा हम एक कॉन्टेक्स्ट को निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसमें एक अलग से कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उसमें नहीं है। नेक्स्ट इज द थीम्स। वो कौन से थीम्स थे जिसके लिए जो हेरोल्ड पिंटर अपने वर्क्स में इंट्रोड्यूस करते थे? द थीम्स आर आइसोलेशन, पावर रिलेशंस, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, पीपल्स इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। आइसोलेशन अकेलापन होता है, पावर रिलेशंस होते हैं कि पावर के बेसिस पे रिलेशंस होते हैं, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, किसी पर्सन, लोगों को अपनी पहचान ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि वो क्या है, इस दुनिया में उनकी पहचान क्या है। पीपल्स इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कि वो किसी दूसरे लोगों से बातें नहीं कर सकते, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है उनको। नेक्स्ट इज कॉमेडीज ऑफ मिनास। जो ये टर्म है ये बनाई किसने है? कॉमेडी ऑफ मिनास कॉइंड बाय द क्रिटिक इरविंग वॉडल। इरविंग वॉडल ने ये टर्म क्रिएट की है, इन्वेंट की है, कॉइन की है, कॉमेडीज ऑफ मिनास। Next, as you know, The Birthday Party, the work that is written with the play that is written by Harold Pinter in 1957. You must remember few things about this play. That is, पीटर जो है, इसमें जो एक घर होता है, इसमें वर्क में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट हाउस। पीटर इज़ द हाउस ऑनर। मैग इज़ हिज वाइफ। पीटर की वाइफ जिसका नाम क्या है? मैग है। नेक्स्ट देयर इज़ अ टेनेंट। टेनेंट का नाम क्या होता है? स्टैनले। और जो टेनेंट को मिलने आते हैं, स्टैनले को मिलने आते हैं, विजिटर्स ऑफ स्टैनले, वो कौन है? गोल्डबर्ग एंड मक्कैन। अ गर्ल लुलू कैरिंग अ पैकेट टॉय ड्रम टू स्टैनलेज बर्थडे पार्टी। एक गर्ल होती है लुलू, वो एक पैकेट लेके आती है टॉय ड्रम का, जो स्टैनले की बर्थडे पार्टी में वो लेके आती है। सो दिस इज सम करेक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्क। यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द करेक्टर। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि ये करेक्टर जो है वो किस वर्क में है, किसका ये वर्क, किसने ये करेक्टर को क्रिएट किया है अपने वर्क में। Other work by Harold Pinter are The Trial, very very important, The Servant, The Dwarfs, published in 1960, Voices, published in 2005. Next is Party Time in 1992,
Next is Last Tycoon. Next work is Reunion. It was published in 1989. Next is The Basement, published in 1966. Next is Sleuth, that is in 2007. Next is Monologue, that was published in 1972. Next is Celebration, which was published in 1999. Next is Tea Party in 1963. Next is Family Voices, that was published in 1980. You just remember the name of these works, okay? Next is New World Order. Next is Silence. And the last one is The Handmaid's Tale. So these are all the name of the important works by Harold Pinter, and important details about Harold Pinter. You must remember the name of the terms that are related to him, the works written by him, and important details about the work, The Birthday Party. So that's all about this. I have covered all the material that is related to your Master Cadre exam, that is important according to that exam. So I hope my videos are some of benefit to you. So thank you very much. If you like my channel, please like, subscribe and share it. Thank you so much. Stay safe and stay healthy.